Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20G from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 10, a cylindrical water tank of diameter 2.8 meters and height 4.2 meters is being fed by a pipe of diameter 7 centimeters through which water flows at the rate of 4 meters per second. Calculate in minutes the time it takes to fill the tank. The question sounds a little complicated, but it's easy. Okay, now I'll write down some information over here given in the question, and then I'll explain you how actually you're going to solve the question. There is a cylindrical water tank, okay, of diameter 2.8 meters and height 4.2 meters. So for cylindrical tank, and also there is a pipe. सो पाइप के लिए भी डायमीटर है एंड इसके लिए भी डायमीटर है, ठीक है ना. सो व्हाट वील डू इज फॉर सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज बिगर वन वील टेक कैपिटल डी एंड कैपिटल एच एंड फॉर पाइप वील टेक स्मॉल डी एंड स्मॉल एच, ठीक है. सो फॉर सिलेंड्रिकल टैंक लेट द डायमीटर, रेडियस एंड height B capital D, capital R and capital H respectively. So what are we given? D is 2.8 meters, तो R हो जाएगा 1.4 meters and H is 4.2 meters. Okay. Now it is fed by a pipe of diameter 7 centimeters. पाइप का इंफॉर्मेशन लिखना है, सो उसके पहले for the pipe let the diameter and radius be small d and small r respectively. I'm not writing the height, I'll tell you later on why. Okay, height is not required over here. So you can also write down the given after I start the explanation, ठीक है. So D is equal to 7 centimeters, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. R is equal to 7/2 centimeters. Keep in mind यहाँ पे there is meters and यहाँ पे there is centimeters, so you have to actually convert. Now through the pipe the water flows at the rate of 4 meters per second. Through the pipe the water flows at the rate of 4 meters per second. So flow rate of water is 4 meters per second, ठीक है. Calculate in minutes the time it takes to fill the tank. Now all this is given to us. There is a cylindrical tank जहाँ पे एक पाइप कनेक्ट किया गया है and water flows through that pipe. Now we have to find the time it takes to fill the tank. ये पाइप से हम लोग टैंक में पानी भर रहे हैं. Let's say this is the cylindrical tank, okay, and you have connected a pipe to fill the tank. Okay, now you have to find the time it takes to fill this cylindrical tank. नाउ सिलिंड्रिकल टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है. नाउ सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम आई कैन ईजिली फाइंड, ठीक है, बिकॉज आई एम गिवन आर एंड एच ओवर हियर. सो आई कैन ईजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक. ऑब्वियसली आई नीड टू नो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक. By that only I can find out how much time it is going to take to fill the tank. Okay, so volume is important over here. कितना पानी भरना है उतना टाइम लगेगा ना. अगर हाफ बकेट भरना है तो कम टाइम लगता है, फुल बकेट भरना है तो ज़्यादा टाइम लगता है. सो इफ़ यू वांट टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, हाउ मच टाइम विल इट टेक, दैट वी हैव टू फाइंड. सो वी आर ऑल्सो गिवन द फ्लो रेट. ओके, इसमें वॉल्यूम जितना पानी भरना है दैट सेम अमाउंट ऑफ वाटर शुड पास थ्रू दिस पाइप. ये सारा पानी इसके थ्रू पास होके ही टैंक में जाएगा, ठीक है. द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप. अमाउंट that is volume
of water required to fill the tank, ठीक है, that same amount of water should pass through the pipe, ठीक है. सो ये पाइप के थ्रू कितना पानी पास हो रहा है, ओके, दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक, ओके. सो इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप फाइंड करना है. Now volume of water passing through the pipe I can find, ठीक है, volume of water passing through the tank, okay, it is equal to pi r square h. ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, हम लोग ने कैप्स लिया है फॉर टैंक. इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम पाई r स्क्वायर h, बिकॉज पाइप इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, पाइप इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. सो दिस इज इक्वल टू दिस, okay. Now for the pipe we are given diameter, so radius तो easily मिल जाएगा, but height नहीं दिया हुआ है. Now height of the pipe anyway does not matter over here, ठीक है ना, पाइप का हाइट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे. so h over here is not important, ठीक है, height of the pipe is not important, just keep in mind for that for now. सो पाई आर स्क्वायर एच मुझे पता है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप मुझे इजीली पता चल जाएगा. ये एच यहाँ पे इज़ नॉट द हाइट ऑफ द पाइप, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वाटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस वाटर ट्रैवल करेगा टू रीच दिस टैंक, ठीक है. जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. So that is basically the distance that we have to find over here. So this h over here is not the height of the pipe, it is the distance traveled by the water, because हम लोग को पता करना है कि कितना टाइम लगेगा पानी भरने में. So that we'll come to know if we know the distance the water is going to travel, ठीक है. We are also given the flow rate, it is going to travel 4 meters in 1 second. फ्लो रेट पता है, लेकिन एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वाटर, वो हम लोग को पता होना चाहिए. सो दिस एच दैट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर. यहाँ से बहुत सारा पानी पाइप में आएगा, ठीक है. सो ये जो पानी है, जो टोटल पानी है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज गोइंग टू गिव मी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर, ठीक है. स्पीड दैट इज द फ्लो रेट इज गिवन टू अस, ठीक है. फ्लो रेट इज नथिंग बट स्पीड ओवर हियर, मीटर्स पर सेकेंड में दिया हुआ है हम लोग को, मीटर्स पर सेकेंड में दिया हुआ है. मीटर्स पर सेकेंड किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सर्टेन टाइम. सो दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द वाटर गिवन टू अस. सो पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, दिस इज द स्पीड ऑफ द वाटर. डिस्टेंस पता करना है, ओके, अपने आप टाइम पता चल जाएगा. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इफ़ आई नो स्पीड यहाँ से दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा, टाइम इजीली मिल जाएगा. शिफ्ट दिस ओवर हियर, शिफ्ट दैट ओवर देयर, ठीक है. सो मेन है ये डिस्टेंस फाइंड करना. डिस्टेंस फाइंड करना कितना ईजी है, बिकॉज वी नो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल दिस टैंक, ठीक है, जितना पानी इसमें भरना है फुल करने के लिए, बिकॉज वी हैव टू फिल द एंटायर टैंक. सो जितना वॉल्यूम इसके लिए लगेगा उतना वॉल्यूम पाइप के थ्रू पास होगा, क्योंकि ये पाइप के थ्रू पास होके ही टैंक में जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप. वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच, बट ओवर योर एच डज नॉट मैटर, ठीक है. अगर ये पाइप इतना छोटा भी है तो भी पानी तो पास होने ही वाला है, बट दैट डज नॉट मीन कि पाई आर स्क्वायर एच दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ओके. वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू द डिस्टेंस, एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द वाटर. यहाँ से बार बार पानी पास होगा, राइट.
बार बार यहाँ से पानी पास होगा, क्योंकि एक बार पास होने से तो पूरा टैंक भरने नहीं वाला है, ठीक है। सो अगेन एंड अगेन दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस। सो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है दैट वी आर गोइंग टू गेट इफ वी इक्वेट इट विद दिस, ठीक है। ये कब सेम होगा, जब एक्चुअल में दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ठीक है, जितना वॉल्यूम यहाँ से पास होगा। सो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से तो बहुत कम पानी पास होगा, ठीक है। सो एज फाइंड करना है हम लोग को, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो। सो टोटल वाटर को पास होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो इम्पॉर्टेंट है। दैट डिस्टेंस वी कैन गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। दैट डिस्टेंस वी नो, स्पीड इज गिवन टू अस, देन टाइम फाइंड करना है इज वेरी इजी। द ओनली थिंग इज वॉल्यूम इज सेम दैट यू आर सपोज टू नो, ओके। नाउ आई शो इट टू यू अगेन, ठीक है, कैसे the distance you are going to actually find. Now the water is passing through this pipe and entering the tank, ठीक है। तो एक बार इतना पानी पास होके यहाँ पे आया, तो लेट्स से ये इतना टैंक भर रहा है, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इनटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सो इतना डिस्टेंस इनटू पाई आर स्क्वायर, द डिस्टेंस इनटू पाई आर स्क्वायर, okay, that is the volume of water required to fill this much part. I want of entire tank, पूरा टैंक को भरने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये। ऑब्वियसली ये पाई आर स्क्वायर के थ्रू ही पास हो रहा है बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द पाइप ओनली। सो ये पाई आर स्क्वायर के थ्रू पास हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है। अभी वापस से यहाँ से पास करना पड़ेगा बिकॉज मुझे यहाँ तक वापस भरना है, तो यहाँ तक भरने के लिए वापस एक और बार पास किया, फिर वापस एक और बार पास किया, फिर वापस पास किया। सो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड ऑन होते जा रहा है, बट ये डिस्टेंस है कितना वो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। सो एंड क्योंकि हाइट भी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैटर भी नहीं करता है, द ओनली थिंग इज डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो हम लोग को फाइंड करना है। सो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ से पानी पास होगा टू फिल द टैंक, ओके, कंप्लीटली। तो वो डिस्टेंस पता होना चाहिए। दैट डिस्टेंस इनटू दिस पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू द पाइप, करेक्ट। पाई आर स्क्वायर इनटू द डिस्टेंस इज गोइंग टू गिव मी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू द पाइप। वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, क्योंकि मुझे पूरा टैंक भरना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप। इसका वॉल्यूम मुझे इजीली पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम के लिए आई नो पाई आर स्क्वायर बट आई डोंट नो द हाइट, एंड हाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, आई नीड टू नो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर। डिस्टेंस कितना वाटर ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ से पानी पास होगा, तो वो सारा डिस्टेंस ऐड ऑन करना है मुझे, ठीक है। सो दैट डिस्टेंस लेट इट बी डी, ठीक है। दैट डिस्टेंस हम लोग लेंगे डी। So that is the distance traveled by the water. Once you know the distance traveled by the water, it is easy to find the time required to fill the tank. Okay, so I hope you understood how we have to find the distance. ठीक है, यहाँ पे height matter नहीं कर रहा है, the distance traveled by the water matters over here. ठीक है। सो ये सारा डिस्टेंस हम लोग को ऐड करते जाना है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर। So we know d pi r square, d into pi r square is equal to pi r square h. We can shift everything on the other side and we can get the distance traveled by the water to fill the tank. ठीक है, so it becomes easy to find that. Now since we have to find the distance traveled by the water, okay, so we'll write down that let d be the distance traveled by the water. ठीक है, so let d be the distance traveled by the water. Okay, distance traveled by the water, the distance that the water is traveling, that is through the pipe. ठीक है, so the let d be the distance traveled by the water through the pipe. ठीक है, so this is the distance.
Now we know that volume of the water required to fill the tank is equal to the volume of the water passing through the pipe. ठीक है, so now we'll show that these two are equal. So volume of water required to fill the tank is equal to pi r square h. ठीक है, and volume of water passing through the pipe, ठीक है, to fill the tank, not more not less. I want to pass the water through the pipe the same amount that is required to fill the tank. ठीक है, टैंक में जितना पानी भरना है, ठीक है, उतना ही वाटर पास करना है थ्रू पाइप. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप टू फिल द टैंक, टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए जितना पानी पाइप से पास होगा दैट इज इक्वल टू दिस ओनली. करेक्ट. बट वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाइप के लिए हम लोग ने स्मॉल आर लिया है. ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास होगा, पाई आर स्क्वायर द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइप इनटू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर. ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर. ठीक है, डी बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर थ्रू द पाइप टू फिल द टैंक. ये यहाँ पे भी मेंशन कर दो, टू फिल द टैंक, बिकॉज हम लोग को टैंक को भरना है एंटायरली. ठीक है, नाउ पाई आर स्क्वायर इन टू डी इज गोइंग टू गिव मी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ठीक है, पासिंग थ्रू द पाइप. सो दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज पाइप से जितना पानी बार बार पास हो रहा है वो सारा पानी टैंक में ही जा रहा है, इवेंचुअली उसको भर रहा है. ठीक है, सो this volume is equal to this volume. So volume of water required to fill the tank is equal to volume of water passing through the pipe to fill the tank. उतना ही वॉल्यूम पास करेंगे हम लोग. ठीक है, बाकी का एक्स्ट्रा पास करके क्या मतलब होगा, वो तो सिलेंडर के बाहर ही चला जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर passing through the pipe to fill the tank. I'm not writing the full statement, you have to write down full thing. So this is nothing but pi r square h and this is pi r square d. So we'll shift all the knowns on one side and d को एक जगह पे रख देते हैं. ठीक है, so d is equal to pi r square h upon pi r square. pi will get cancelled, we are left with r square h upon small r square. ठीक है, now we'll substitute the values. Now we had got d is equal to r square h upon small r square. So r का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया, h का भी किया, also small r. Now if you have not already converted this into meters, then you need to convert it into meters. ठीक है, आई एम कन्वर्टिंग इट ओवर हियर. यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ रेडियस. डोंट कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर्स. ठीक है ना, टैंक का जो है मीटर्स में दिया उसको सेंटीमीटर्स में मत करो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फ्लो रेट मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं दिया हुआ है. सो दिस इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, देन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको भी मीटर्स में ही करो. ठीक है, इफ़ यू पुट दिस इन सेंटीमीटर्स देन क्या हो जाएगा, इवेंचुअली आंसर डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में मिलेगा. ठीक है, एंड ये क्या है, मीटर्स पर सेकेंड में. देन अगेन यू नीड टू कन्वर्ट एंड चेंज. सो इंस्टेड कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स. ठीक है, सो आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू मीटर्स. दिस इज नथिंग बट 3.5. ठीक है, 7/2 इज नथिंग बट 3.5. ये भी हो जाएगा 3.5. ठीक है ना. So this is nothing but 3.5 upon 100, 3.5 upon 100 if you convert it to meters.
सो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 अपॉन 3.5 अपॉन 100 इंटू 3.5 अपॉन 100. डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर तो वो न्यूमरेटर में जाता है. सो ये दोनों न्यूमरेटर में जाएगा. सो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 100 इंटू 100 upon 3.5 into 3.5. Now again I have decimals. तो what I'll do is, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट क्या, यहाँ पे जीरोस इसमें चला जाएगा. ठीक है, सो एक ज़ीरो यहाँ पे, एक ज़ीरो यहाँ पे और एक ज़ीरो यहाँ पे, सिर्फ एक 10 बचेगा. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ 14 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 10. ठीक है, अपॉन 3.5 इंटू 3.5 है तो उसको भी हम लोग निकाल देते डेसिमल को. सो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, वॉट एवर एक्शन यू टेक इन द डिनोमिनेटर सेम इन द न्यूमरेटर एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो नाउ वी कैन कैंसिल आउट. ठीक है, तो 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 20 ज़ा 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा. दिस इज इक्वल टू डी. ठीक है, सो अब काफ़ी इजी हो गया. 2 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 2 इंटू 20. सारे 2s को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 इंटू 42 करना है इंटू 10 है. ठीक है, ये ज़ीरो भी है तो 16 इंटू 42. 6 2 ज़ा 12. ठीक है, 6 4 ज़ा 24 25 0 2 4 2 7 6 7 2 एंड पीछे ज़ीरो आ जाएगा, इसका ज़ीरो था. ठीक है, सो वी गेट 6720 मीटर्स. ठीक है, सो वी गॉट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वाटर टू फिल द सिलेंड्रिकल टैंक. नाउ इट्स वेरी इजी. टाइम फाइंड करना है एंड फ्लो रेट ऑलरेडी दिया हुआ है. नाउ टाइम फाइंड करना है इन मिनट्स. कैलकुलेट इन मिनट्स. फ्लो रेट कैसे दिया हुआ है, दैट इज स्पीड क्या दिया हुआ है, 4 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है, मिनट्स में नहीं दिया हुआ है. सो मुझे जो स्पीड है उसको भी मिनट्स में फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ सेकेंड्स के साथ डिवाइड करके मुझे आंसर नहीं आएगा, आई विल गेट अ रॉन्ग आंसर. सो ये भी पर मिनट का डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए. ठीक है, सो आई हैव टू चेंज दिस एज वेल. ओके, नाउ फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 4 meters per second. आई नीड टू फाइंड इन मिनट्स. सो the distance, ठीक है, how much meters in how much time, 4 meters, ठीक है, in 1 second, then 60 seconds, that is 1 minute. 1 minute में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो कितना आएगा, 1 इंटू x is equal to 4 into 60. So how much meters, it will be 240 meters. ठीक है, so it is equal to 4 into 60 meters per minute. ठीक है, that is nothing but 240 meters per minute. So now we got in minutes. ठीक है, so we have the speed. Flow rate is nothing but the speed. ठीक है, नाउ वी नो द रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बस वही यूज़ करके हम लोग को द टाइम टेकन बाय द वाटर टू फिल द टैंक फाइंड करना है. वी नो दैट फ्लो रेट, ठीक है, ऑफ वाटर, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय वाटर अपॉन टाइम टेकन बाय वाटर टू फिल द टैंक. मैंने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स लिखा है, फुल लिखना पड़ेगा. फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू पाइप टू फिल द टैंक, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वाटर टू फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय द वाटर टू फिल द टैंक. ठीक है, आई हैव लेस स्पेस सो आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वाटर दैट इज 6720. ठीक है, एंड टाइम टेकन, तो टाइम टेकन क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और फ्लो रेट यहाँ पे लेके आएंगे. तो अभी के लिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ
टाइम टेकन, एंड फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट इज़ 240 मीटर्स पर मिनट, ये भी मीटर्स में है, ठीक है, सब सेम है। सो अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, टाइम टेकन वहाँ पे जाएगा, सो 240 एंड यहाँ पे टाइम टेकन फुल लिखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम टेकन बाय द वाटर टू फिल द टैंक, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 12 2 3 2 3 2 6 2 6 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 3 2 8 4 8 + 4 is 12, मतलब it is divisible by 3, so 3 2 6, ओके, एंड 24 बचा तो 3 8 24, सो 28 मिनट्स इज द आंसर, ठीक है, बहुत ईजी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना इज़ वेरी इजी, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, ठीक है। सो मेन एम इज टू फाइंड द डिस्टेंस, आफ्टर दैट इट इज़ वेरी वेरी ईजी। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय द वाटर टू फिल द टैंक इज 28 मिनट्स।